Today we're going to start our practical question on workman compensation reserve. We are taking an illustration for understanding the concept which we have studied in our last class, that what would be the treatment for workman compensation reserve if the amount of claim which is being claimed by the workman as in compensation is greater than the reserve, is equals to the reserve, is less than the reserve, or if the WCR or if there is no claim exists for the related workman compensation. क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम कैसे डील करेंगे, कैसे ट्रीट किया जाएगा हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया, जिनकी जर्नल एंट्रीज के साथ हमने वर्किंग की थी कि अगर WCR के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसे कैसे डील करते हैं, अगर कोई क्लेम एग्जिस्ट करता है तो हम उसे कैसे डील करते हैं कि वो क्लेम का अमाउंट इक्वल टू रिजर्व है, कम है कि ज्यादा है। एक एग्जांपल के साथ हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट क्या है। ये जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ ये सेम कंसेप्ट मैंने आपसे कल भी कहा था कि यही कंसेप्ट हमें यूज करना है अपने आने वाले अगले एडमिशन और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी, इसीलिए आप इसे ढंग से समझें। तो मैं आपको आज का लेक्चर इसके एक इलस्ट्रेशन के ऊपर दे रहा हूँ जो अपने को कल के पढ़ाए हुए कंसेप्ट को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करवा पाए। क्वेश्चन है A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. Now they decided to share their future profits and losses in the ratio 2:3:4. A, B, C are partners sharing their future profits and losses in the ratio 4:3:2. While they have decided to share their future profits and losses in the new ratio, which is 2:3:4, respectively for A, B, and C. Now, in their balance sheet extract, there is a workman compensation reserve appeared in their balance sheet under liability side. There is a workman compensation reserve which is appeared in liability side of balance sheet of amount 60,000. This is the amount disclosed in liability side of balance sheet. This is the extract of balance sheet which is not considered as a full balance sheet. So the extract means required figures are shown where it is considered. So balance sheet and the liability side workman compensation reserve appeared at amount 60,000. Now we are dealing 4 cases. First case is when no claim exists. Second, when amount of claim is rupees 40,000. Third, when amount of claim is rupees 60,000. And fourth, when amount of claim is rupees 1 lakh. These are our 4 conditions. First, ABCR partners profit sharing ratio 4:3:2. Now they decided to change their profit sharing ratio to 2:3:4. At that time, their balance sheet shows a workman compensation reserve of rupees 60,000. We are having 4 cases. Case 1, when there is no claim exist. Case 2, when there is a claim of rupees 40,000 in the name of workman compensation claim. When there is a claim of rupees 60,000 and when there is a claim of rupees 1 lakh. These are the 4 cases which we are going to deal under workman compensation reserve. So we have to understand all the cases in terms of the study we have done earlier in our earlier classes. Now, for case number 1,
I am providing the solution for the case number 1 when there is no claim exists. We have studied in our last class that when there is no claim against workman compensation reserve, then that reserve would be considered as free reserve, and that reserve can be distributed among old partners in their old profit sharing ratio. So in case number 1, what we have to do is we have to distribute the workman compensation reserve of rupees 60,000 in old partner. Here old and new partner both are same. Here old partner is A, B and C, and new partner is also same A, B and C. I am doing, or I am pointing on the word old partners. This particular word or this particular concept is being used in our next classes. That's why I am inputting you the same concept for the future aspect. तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि हम इनपुट में क्या ले रहे हैं. ये कंसेप्ट जो अभी बिल्ड करेंगे ये आगे जाकर लंबे टाइम तक यही कैरी किए जाएंगे और कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो जब हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें चैप्टर बहुत इजी लगेगा और बहुत इजीली हम उनका कैलकुलेशंस कर पाएंगे. और मैं आपको वो भी नहीं चाहता कि हम इन सब चीजों को रटे और याद करें कि कैसे हमने उस थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में कैसे वर्किंग की थी, फिफ्थ के अंदर वर्किंग थोड़ी चेंज है, सिक्स्थ में थोड़ी और चेंज है. वो सब चीजें हटाओ, सिंगल वर्किंग को याद रखेंगे कि जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा और अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में. इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड और न्यू पार्टनर दोनों सेम है लेकिन उनके रेशियो अलग है. तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में हम इस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन केस 1 का बनता है. एक ही जनरल एंट्री पास करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो वो आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट टू c's कैपिटल. ये हमारे पुराने पार्टनर में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना. अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्योंकि कोई भी क्लेम हमारे ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता तो पूरा का पूरा रिजर्व हमारे लिए फ्री रिजर्व है. तो आप इस 60,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो 4:3:2. ठीक, 4:3:2. तो 4, 3, 7 और प्लस 2, 9. 60,000 को 4:3:2 में आप डिवाइड करेंगे तो आएगा कैलकुलेशन देखना. जब इस 60,000 के रिजर्व को हम 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 4/9 of 60,000, 3/9 of 60,000 and 2/9 of 60,000. ये हमारी कैलकुलेशन है. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 20,000 40,000 डिवाइडेड बाय 3 वो आएगा आपका 13,333. इसका आएगा 26,667. इसका आएगा 20,000 और इसका आएगा 13,333. ये है हमारी कैलकुलेशन जब हम इसको 4:3:2 में डिवाइड करेंगे 60,000 को. एक चीज को चेक कर लेना, इन तीनों की टोटल हमेशा 60,000 आनी चाहिए क्योंकि इसी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. तो 26, 13, 39, 40 और 20 60,000. तो ये हमारे प्रोपोर्शन हुए कि ए, बी और सी को कितना मिलेगा. तो ए में आप जो अमाउंट मेंशन करेंगे वो आएगा 26,667. बी में जो आएगा वो होगा 20,000 और सी में जो आएगा वो होगा 13,333.
ये है हमारी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं। ये हमारे फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है। सेकंड केस ये कह रहा है कि व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इज ₹40,000, दैट मींस हमारे पास रिजर्व अवेलेबल है 60,000 का, उसके अगेंस्ट हमें क्लेम का पेमेंट करना पड़ेगा 40,000 का, और उसके बाद भी 20,000 रुपए हमारे पास फ्री रहेंगे, जिसको हम 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। आपको वर्किंग क्या करनी रहेगी? सेकंड केस, फर्स्ट एंट्री 40,000 का क्लेम सेटल होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू remaining amount is to be distributed among old partners, old ratio, to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. Workman compensation reserve would be debited with the full amount 60,000. Out of that 60,000, 40,000 transferred to the claim, and remaining 20,000 is again distributed among old partners, old ratio. तो ये तीनों ही ओल्ड पार्टनर हैं और ओल्ड रेशियो में हम इस अमाउंट को बचे हुए 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज 20,000 is to be distributed among A, B and C in 4:3:2 रेशियो। ठीक, तो आप इस 20,000 को 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो भी फिगर आएगा उसे ए, बी और सी के अंदर हम मेंशन कर देंगे। उसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि क्या फिगर हमें मिलते हैं। आपको जो फिगर मिलेंगे वो होगा 4 ये फिगर आएंगे आपके वर्किंग करने के बाद। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होगा 60 से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में अमाउंट जाएगा 40,000, रिमेनिंग 20,000 को पुराने पार्टनर ए, बी और सी के पुराने रेशियो दैट इज 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये हमारा केस नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फास्ट। Now, case number 3. In case number 3, amount of claim is 60,000, which is totally equal to the amount of reserve. So in case number 3, full amount of reserve is transferred to settle the claim amount. Workman compensation reserve account debit to workman compensation claim account. Workman compensation reserve is of 60,000 and the total amount is to be used for settling the claim against workman compensation. तो 60,000 पूरा का पूरा रिजर्व क्लेम को सेटल करने में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा इससे ज्यादा का ना हमारे ऊपर क्लेम था, ना इससे ज्यादा का हमारे पास रिजर्व अवेलेबल था। तो ना कोई पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ना ही आपके पास कोई एक्सेस क्लेम है जिसको आप रेवोल्यूशन में ले जाओ। तो ये है हमारा केस नंबर 3।
केस नंबर 4 जो है उसको फिर से समझते हैं। केस नंबर 4 ये कह रहा है कि रिजर्व हमारे पास 60,000 है, लेकिन हमारे पास उसके अगेंस्ट जो क्लेम पड़ा है वो है 1 लाख रुपए। टोटल मिलाकर 60,000 के रिजर्व के अगेंस्ट में 1 लाख रुपीस का हमारे पास क्लेम है जिसको हम सेटल करवाएंगे। बट अगर यहाँ देखा जाएगा तो रिजर्व अवेलेबल 60,000 है बट क्लेम है 1 लाख का, तो अभी भी 40,000 रुपए और पार्टनर को देने पड़ेंगे टू सेटल दैट पर्टिकुलर क्लेम, बिकॉज हमारे को क्लेम सेटल करना है 1 लाख का और इसी के अगेंस्ट हमारे ऊपर रिजर्व अवेलेबल है 60,000 का। जब रिजर्व हमारे पास 60,000 का अवेलेबल है और क्लेम है हमारे ऊपर 1 लाख का, तो पूरा का पूरा रिजर्व भी यूज कर लेते हैं उस क्लेम के अंदर, तो भी 40,000 रुपए हमारे कम होते हैं। जो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो। तो इसकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। ये डेबिट इसलिए हो रहा है बिकॉज हम इस लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अदर लायबिलिटी को पे करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, इसलिए हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब भी लायबिलिटी को हम रिड्यूस करेंगे तो वो हमारे लिए डेबिट होती है, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट वो है 1 लाख रुपीस का। तो जो डिफरेंस का 40,000 है वो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सेटल होगा 1 लाख रुपीस से। सेकंड जनरल एंट्री होगी इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। तो एंट्री हम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वो होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू revaluation account. Revaluation account would be credited with the same amount which we have debited earlier in previous journal entry. 40,000 is being contributed by A, B and C in their profit sharing ratio, जो उनका पुराना profit sharing ratio है। तो 40,000 को आप 4:3:2 में डिवाइड करेंगे, वो आप कैलकुलेट करें कि 40,000 को जब हम 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा। approximately 7774 और कैलकुलेट करो 40,000 distributed among A, B and C in 4:3:2 ratio. ऊपर 7 और 8 और 7 25, इसके हिसाब से जाएगा तो 13,325। एक मिनट होल्ड करना। So A's capital, B's capital, C's capital debited with 4:3:2 ratio and revaluation account credited with 40,000. Amount would be 17,778, 13,333, 8,889 rupees. ये हमारे तीनों फिगर होंगे जिसमें इस फोर्थ केस को डील किया जाएगा। इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर में और आने वाले दोनों चैप्टर में हम इस अकॉर्डिंग इसे डील करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इन चारों कंडीशन, चारों केसेस के हमारे सॉल्यूशन हैं
दो के मैं आपको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह चुका हूँ और बचे हुए केस 3 और केस 4 का सॉल्यूशन आपके सामने है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना है। अगर इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो आपके पीछे एक दो क्वेश्चन है बुक के अंदर अनसोल्ड क्वेश्चन, वो आप सॉल्व करेंगे। कल उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पहले उस डाउट को सॉल्व करेंगे और फिर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।